Namaskar, welcome to SGKG YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about FRSR rules, that is fundamental rules and supplementary rules. As we have discussed earlier itself, fundamental rules and supplementary rules are of the year 1922. It came into effect by getting the power from Government of India Act 1919. So it is pre-independence rules and regulations which are still in practice with some addition, deletion, amendments. So far we have discussed about definition part on FR and SR. Now we will be discussing about मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट. हम सबका अपॉइंटमेंट हुआ है और जितने लोगों का अपॉइंटमेंट होता है उतने लोगों का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस में तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपको अपॉइंटमेंट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए अभी हम उस सारे प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड है. फंडामेंटल रूल्स एंड फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स में FR 10 जो है, फंडामेंटल रूल्स 10 है, दैट टॉक्स अबाउट हेल्थ सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट. ओनली वन रूल, दैट इज FR 10 is related to health certificate on first appointment, but after that so many government orders, DOPT orders has been issued for further clarification on the subject matter. So we have to understand FR 10 as well as the other DOPT orders issued from time to time on the subject matter. Fundamental Rule 10, health certificate on first appointment. Except as provided by this rule, no person may be substantially appointed in India to a permanent post or in government service without a medical certificate of health which must be affixed to his first pay bill. So the requirement starts with negative terminology except as provided by this rule, means there may be some exception. After that, no person may be substantially appointed in India to a permanent post. So if there is any permanent post in India, that post is substantially, so in that cases health certificate is prime requirement. Without health certificate, appointing authority can straightway tell, please come with the medical certificate. Medical certificate, why it is so, which must be affixed on his first pay bill. So after appointment, first bill has to be processed, and for processing the first bill, along with the first bill, medical certificate needs to be attached. This is the significance of health certificate. This is the significance of medical certificate. मेडिकल सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट के समय में होना ही चाहिए. मेडिकल सर्टिफिकेट जो अपॉइंटमेंट के समय में हम डिपार्टमेंट को देते हैं, उसकी एक कॉपी जो फर्स्ट पे बिल होता है उस फर्स्ट पे बिल के साथ अटैच किया जाता है. जो ऑडिटर होते हैं वो ऑडिटर जो भी फर्स्ट बिल पेमेंट का बिल होगा उसको वो चेक करते हैं कि इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच हुआ है कि नहीं. इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना ही है. A local government may make rules prescribed in the form in which medical certificate should be prepared and the particular medical or other officers by which they should be signed. So मेडिकल जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा हो, मेडिकल सर्टिफिकेट किस डॉक्टर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, इसके बारे में गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करती है, डेलीगेशन करती है कि डिपार्टमेंट अपना रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस डॉक्टर की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, किस पोस्ट के लिए किस फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है. गवर्नमेंट चाहे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्मेट भी बनवा सकती है और
ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट वाला होगा, गवर्नमेंट का होगा, ईएसआई कॉलेज का होगा, एम्स का होगा, मेडिकल बोर्ड का होगा, वो सब उसमें प्रिस्क्राइब कर सकती है। इट मे in individual cases dispense with the production of certificate and may be general order exempt any specified class of government servants from operation of this rule. गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष को एग्जेम्प्ट कर सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को भी बोल सकती है ठीक है बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का भी इनका हम अपॉइंट ले सकते हैं, और किसी ग्रुप विशेष का, क्लास विशेष का, क्लास स्पेसिफिक का भी एग्जेम्पशन कर सकती है। ये गवर्नमेंट पे डिसाइड करता है। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू एग्जेम्प्ट सम पर्सन्स और सम क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अदरवाइज इन जनरल केसेस मेडिकल सर्टिफिकेट is compulsory at the time of appointment for a substantive post in substantially in a permanent post in government of India. टेम्पोररी पोस्ट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि फंडामेंटल रूल्स 10, सिर्फ एक ही सेक्शन है फंडामेंटल रूल 10 जो हेल्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें करता है। इसके बाद जितने भी क्लेरिफिकेशन है, एडिशन है, मॉडिफिकेशन है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी ने टाइम टू टाइम इशू किया है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी न्यू एंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ। पर्पस क्या है? To ensure that only persons who are physically as well as mentally sound in health are admitted to government services। ऐसा है जो फिजिकली हेल्थ जिसका ठीक होगा, जो मेंटली जिसका हेल्थ ठीक होगा, उसी से हम कुछ गवर्नमेंट जॉब का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जो आदमी बीमार होगा वो अपने हेल्थ में ही लगा रहेगा, वो सर्विस कहाँ से रेंडर करेगा, और जो मेंटली इल होगा वो तो सारे डिपार्टमेंट को ही डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए ये उम्मीद किया जाता है कि गवर्नमेंट सर्विस में उसी को जॉब दिया जाए जो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली साउंड हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ऐसे लोगों को लायबिलिटी बना करके गवर्नमेंट जॉब पर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज फिजिकली एंड मेंटली साउंड और नॉट, medical certificate is required at the time of appointment. Every new entrant including a part-time employee on appointment to government service post is required to produce a medical certificate of health issued by a competent authority. यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि परमानेंट के साथ साथ पार्ट टाइम एम्प्लॉय जो हैं, गवर्नमेंट पोस्ट में जो एम्प्लॉय हो रहे हैं, उन सबको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू लेकर के ही आना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? दैट इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री। वेयर द पोस्ट इज परमानेंट एंड अपॉइंटमेंट देयर टू इज मेड इन अ सब्सटेंटिव कैपेसिटी, द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर सच अपॉइंटमेंट। सो जितने भी परमानेंट पोस्ट हैं उन पे अपॉइंटमेंट से पहले ही मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो ऑफिशियल मेमोरेंडम जो है 1954 का, उसमें मेंशन किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, नो अपॉइंटमेंट इन पेंशनेबल सर्विसेज विदाउट मेडिकल फिटनेस। अच्छा ऐसा है, पहले तो, अभी तो पेंशनेबल का डेफिनेशन चेंज हो गया है। पहले जितने लोग जॉब में आते थे पेंशनेबल सर्विस में आते थे। पेंशनेबल सर्विस में आने के बाद से कुछ क्वालिफाइड पीरियड होता था, जिस क्वालिफाइड पीरियड को पूरा करने के बाद से सर्विसेज पेंशनेबल हो जाती थी, एक्सेप्ट डेथ। अगर डेथ हो गया, किसी कारण से डेथ हो गया, तो बिना किसी कंडीशन के पेंशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए पेंशनरी सर्विस में, पेंशनेबल इस्टेब्लिशमेंट में किसी को भी लेना है, किसी को भी अपॉइंटमेंट करना है, तो विदाउट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं करना है। आज जिसको हम जॉब करने के लिए ले रहे हैं, कल वो हमारी बहुत बड़ी लायबिलिटी न बन जाए, इसलिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। एवरी न्यू एंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्विस
on initial appointment is required to produce a medical certificate of fitness issued by competent authority. Powers of the president have been delegated to administrative ministries to authorize in relaxation of FR10 the drawal of pay and allowances for a period not exceeding 2 months in respect of fresh appointment to government services without medical certificate. MCQ क्वेश्चन. प्रेसिडेंट ने मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर रखा अपने पावर को कि जो ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट पर मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, अगर किसी कारण से वो व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उनका अपॉइंटमेंट ले लिया गया है, तो पहला कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट पे बिल के साथ उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, और नहीं तो ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि ही इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और ऐसे करके 2 मंथ तक की सैलरी उनको पे की जा सकती है. मतलब 2 महीने तक एक्सट्रीम कंडीशन में अगर डिपार्टमेंट को लगता है तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंटमेंट तो दे सकता है, बट 2 मंथ के टाइम तक ही दे सकते हैं. अगर 2 मंथ में भी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया तो उनको नमस्कार करना पड़ेगा. ऐसा प्रेसिडेंट ने डेलीगेट किया अपने पावर को डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को. इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन फैमिली पेंशन कम्युनिकेटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 79 family pension entitlement without minimum service period limit, it has been decided that in no case should be a person be allowed to join government service in pensionable establishment without having been medically examined and found fit. अब इस रूल को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया है. यहाँ पर मॉडिफाई जो है 79 के रूल से मॉडिफाई कर दिए हैं कि ये जो 2 मंथ का जो ये पीरियड है एक्सेप्शनल रहेगा. अदरवाइज जनरल रूल यही है कि नो केस शुड पर्सन इन नो केस अ पर्सन शुड बी अलाउड टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस इन ए पेंशनेबल एस्टैब्लिशमेंट विदाउट हैविंग बीन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड फाउंड फिट. सो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का, मेडिकल सर्टिफिकेट मीन्स फिट सर्टिफिकेट, अनफिट का नहीं लेना है. जो अनफिट है, नॉट फिट फॉर द जॉब, फिटनेस का सर्टिफिकेट जो डॉक्टर जिसके पास जो भी जाएंगे वो सर्टिफिकेट बनाएंगे. 2 ही तरह का सर्टिफिकेट बनाएंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकली फिट, अनफिट सर्टिफिकेट नॉट फिट. सो हमें क्या चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए? मेडिकली फिट सर्टिफिकेट चाहिए. अगर मेडिकली अनफिट सर्टिफिकेट आता है, हम उस महाशय को अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं. कंप्लीट एग्जामिनेशन फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस. The ministries of the government of India are competent to dispense with the medical certificate of fitness before appointment to government of India. कहने का मतलब ये है, मिनिस्ट्रीज के पास पावर है मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस करने के लिए. नहीं चाहिए एक्सेप्शनल केसेस के लिए. केस हैज़ कम टू अ नोटिस ऑफ मिनिस्ट्री इन विच एन ऑफिसर वाज अपॉइंटेड टू ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट विदाउट बीइंग मेडिकली एग्जामिन्ड. ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई बायस केस हो. ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट में किसी महाशय को अपॉइंटमेंट दे दिया गया बिना मेडिकल सर्टिफिकेट का. बाद में वो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हमारे पास ये डेलीगेशन ऑफ पावर है और हम चाहें तो इनको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और उसी के सहारे और उसी फंडामेंटल रूल 10 के बाद बेसिस पे इनको मेडिकल सर्टिफिकेट से एग्जेम्पशन दिया जाता है. This ministry, the ministry concerned was thus not competent to grant exemption to the officer from medical examination at the time of his confirmation without the concurrence of Ministry of Finance. बाद में कंक्लूड ये हुआ कि किसी भी मिनिस्ट्री के पास मेडिकल सर्टिफिकेट को एग्जेम्प्ट करने का पावर नहीं है. मेडिकल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसको एग्जेम्प्ट करने का पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसी पर विचार करेगी जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से रिकमेंडेशन आता है. इसका मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास ही कंक्लूसिव पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि किसी व्यक्ति को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट. फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या करना है? इट हैज़ बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर नॉट जनरल द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट टू द फर्स्ट पे बिल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस शुड बी डिस्पेंस्ड विद, हाउएवर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट ए सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट. सो क्या हुआ
रूल तो ये है कि फर्स्ट पे बिल के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है। बाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तरफ से ये फर्दर क्लेरिफिकेशन आता है। क्या क्लेरिफिकेशन आता है? दो तरह का क्लेरिफिकेशन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गजेटेड ऑफिसर certificates furnished by the competent authority to whom the medical certificate has been submitted should be attached to the first bill. So जितने गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इनके फर्स्ट पेमेंट के साथ इनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अटैच करना ही है। In respect of non-gazetted officers, the drawing and disbursing officer should furnish such certificate along with the first pay bill of government servant concerned. जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनका जो फर्स्ट पे बिल होगा उसमें जो डीडीओ होंगे, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होंगे, डीडीओ एक सर्टिफिकेट उसमें लिख देंगे कि यस मेडिकल सर्टिफिकेट फाउंड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट रिसीव्ड एंड ही इज फाउंड फिट टू ज्वाइन द ड्यूटीज। सो क्या करना है? गजेटेड ऑफिसर्स के केस में एग्जैक्ट जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी लगाना है पे बिल के साथ, फर्स्ट पे बिल के साथ। और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स में एक सर्टिफिकेट डीडीओ की तरफ से चला जाएगा और वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सीएजी का कहना है। और ये जो रूलिंग है ये 24 अगस्त 1966 की है। री एग्जामिनेशन ओनली इन केस पॉसिबल एरर ऑफ जजमेंट। कई बार ऐसा होता है, देखिए सारी कहानी जो है मेडिकली अनफिट के लिए चल रही है। कुछ लोग मेडिकली फिट होते हैं, कुछ लोग मेडिकली अनफिट होते हैं। जो मेडिकली फिट होते हैं उनको सर्टिफिकेट ला करके देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको किसी प्रकार की एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेडिकली अनफिट हैं वो इसका कुछ ना कुछ लूप होल्स ढूंढते ही हैं, और जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं वो री एग्जामिनेशन के लिए भी ट्राई करते हैं, किसी दूसरे तीसरे कंपिटेंट अथॉरिटी से री एग्जामिनेशन कराएंगे। सो ऐसा है कि री एग्जामिनेशन का प्रोविज़न है, बट it has been decided that there should be no right of appeal from the findings of civil surgeon or authorized medical attendant, but that if government is satisfied on the evidence placed before it by candidate concerned of the possibility of error of judgment. किस बेसिस पे हो सकता है? पॉसिबिलिटी ऑफ एन एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, साहब से थोड़ा सा गलती हो गई है देखने में, इसके बेसिस पे री एग्जामिनेशन का परमिशन दिया जा सकता है। बट इसमें क्या है? द प्राइस ऑफ सच री एग्जामिनेशन इफ एनी विल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न। री एग्जामिनेशन का कहाँ पे कराना है, कैसे कराना है, अथॉरिटी विल डिसाइड, और उसका अगर कुछ पेमेंट होता है तो इंडिविजुअल हैज़ टू बियर, एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1962। एन अपील टू बी रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जितने प्रकार के हेल्थ सर्टिफिकेट इशू हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू हैं, किसी को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है, किसी को नहीं करना है, किसी का मेडिकल फिटनेस सही है, किसी का मेडिकल फिटनेस चैलेंजेबल है, किसी को अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बारे में जितने अपील हैं, सारे अपील मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने अपील हैं, दैट टू बी रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही कंपिटेंट अथॉरिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिविजुअल मेडिकली फिट है, अनफिट है, री एग्जामिनेशन हो सकता है, एग्जामिशन दिया जा सकता है। ये सारे जितनी फिजिबिलिटी है वो सबका डिसीजन जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास है। तो इस तरीके से फंडामेंटल रूल 10 related to medical certificate is over. Now we are shifting to fundamental rule 11 that is related to employee at disposal of government. So ये जनरल कंडीशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इस जनरल कंडीशन चैप्टर में फंडामेंटल रूल 11 है एम्प्लॉय एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ? Unless in any case it be otherwise distinctly provided, the whole time of the government servant is at the disposal of the government which pays him, and he may be employed in any manner required by proper authority without claim of additional remuneration, whether services required of him are such as would ordinarily be remunerated from general revenue, from local fund, or as the case may be. So कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा वर्किंग आवर है
मॉर्निंग 9 to 5 हो, 9:30 to 5:30 हो, जो कुछ भी हो, जितने देर तक हमारा वर्किंग आवर है, वी आर एट द डिस्क्रिशन, एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमसे जो काम सही लगता है वो काम करवा सकती है। तो ऐसा नहीं कि डिग्रेडेशन वाला काम करवा सकती है। इसका भी जो फंडामेंटल रूल 11 है, इसको डेलीगेट किया गया अथॉरिटी जो है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ने चार्टर ऑफ ड्यूटी बनाया है, और उस चार्टर ऑफ ड्यूटी में मेंशन किया हुआ है कि डीडी साहब का क्या कार्य है, कमिश्नर साहब का क्या कार्य है, एसएसओ साहब का क्या ड्यूटी है। ये सारे ड्यूटी जो है चार्टर ऑफ ड्यूटी में मेंशन किया गया है, एंड दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल रूल 11। सो फंडामेंटल रूल 11 के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेंट जितने हैं, वो जो भी गवर्नमेंट काम देती है, मतलब चार्टर ऑफ ड्यूटी जो डिसाइड होकर के आता है, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चार्टर ऑफ ड्यूटी में जो कुछ भी मेंशन किया हुआ है उसे हमें फॉलो करना ही है अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बने रहना है। और ऐसे ही फॉलो नहीं करना है, बढ़िया से फॉलो करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एडिशनल रेमुनरेशन। मैं 2 ब्रांच का मैनेजर हूँ, मैं 3 ब्रांच का मैनेजर हूँ, मैं 4 ब्रांच का मैनेजर हूँ, मैं आधा SRO में देखता हूँ, सब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। आपका जो रेमुनरेशन है, जो सैलरी है, उसी में ये सब करना है, क्योंकि आपके ऊपर फंडामेंटल रूल 11 अप्लाई होता है। ठीक है, तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एडिशनल रेमुनरेशन, we all government servants are at the disposal of the government for the duty period। so इसमें हम आनाकानी नहीं कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए। जो भी चार्टर ऑफ ड्यूटी है उनको समझ लें, और समझने के बाद से वो सारी जितने भी ड्यूटीज हैं उन सबको परफॉर्म करना है। दैट इज प्रोवाइडेड इन फंडामेंटल रूल 11। आज का नीति श्लोक, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थिन कुतो विद्या, सुखार्थिन मीन्स सुख को चाहने वाले को, कुतो मीन्स कहाँ विद्या होती है, आराम चाहने वाले यानी मेहनत से जी चुराने वाले, समझने वाले, समझने का फर्क है। आराम चाहने वाले यानी मेहनत से जी चुराने वालों को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्यार्थी को सुख शांति यानी आराम नहीं मिल सकता। अर्थात आराम की चाहत रहने वाले को विद्या का, और विद्या पाने वाले को सुख का त्याग कर ही देनी चाहिए। इसी में उसके सफलता के रहस्य छुपे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमें डिसाइड करना है कि हम विद्यार्थी हैं कि सुखार्थी हैं, दोनों पैरेलली नहीं चलते। हमें डिसाइड करना है कि 2 कैटेगरी में से हम किस कैटेगरी में आते हैं। हम विद्यार्थी हैं तो हमें सुख को त्याग देना चाहिए, और अगर हम सुखार्थी हैं तो विद्या की कल्पना नहीं करनी चाहिए। सीधी सी बात है। विद्या उसी को, विद्या धन उसी को प्राप्त होता है जो अपना सुख त्याग देता है, जो अपना आराम त्याग देता है और मेहनत पे लग जाता है। उसके लिए कोई दिन नहीं, उसके लिए कोई रात नहीं, उसके लिए कोई सुबह नहीं, उसके लिए कोई शाम नहीं। मिडनाइट लैंप जलाने पड़ते हैं विद्यार्थी को। इसलिए हमारे जितने भी फ्रेंड हैं अपने आप को समझ लें कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो जितने समय के लिए विद्यार्थी हैं वो कम से कम उतने समय के लिए सुख को त्याग दीजिए और मेहनत पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो सुखार्थी बने रहिए, विद्या का त्याग कर दीजिए। विद्या मिलने वाली नहीं है। विद्या को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, और आज के कॉम्पिटिटिव युग में तो ये जो श्लोक है ये और भी रिलेवेंट हो जाता है। आज तो 0.01 0.00% पर मेरिट लिस्ट बनते हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में जिसने जितना आराम किया है उतना उसके निगेटिव में चला जाएगा, जिसने जितना मेहनत किया है वो पॉजिटिव में चला जाएगा।
तो इसलिए आज का जो ज़माना है वो मेरिट का ज़माना है, सिर्फ पास का ज़माना नहीं है। और मेरिट में वही परफॉर्म करेगा जो जी जान लगा करके मेहनत करेगा, थोड़े दिन के लिए सुख को त्याग देगा, और उतने जब तक सफलता नहीं मिलती कम से कम उतने दिन तक तो विद्यार्थी बन के रहेगा। इसलिए फिर से दोहराता हूँ, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेदम विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। आराम चाहने वाले यानी मेहनत से जी चुराने वालों को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्यार्थी को सुख यानी आराम भी नहीं मिलता। आराम की चाहत रखने वाले को विद्या का, और विद्या को पाने वाले को सुख का त्याग कर ही देनी चाहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, ये ट्रेनिंग पर्पस है, ये स्टडी पर्पस है। जब भी कोई स्पेसिफिक रिलेवेंट की ज़रूरत पड़ती है तो जो गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग लॉ रेगुलेशन है DOPT में जा करके उसको चेक करके ही आगे बढ़ें। ये जो मटेरियल आपको हम दे रहे हैं ये आपके समझाने के लिए दे रहे हैं, इसको एज ए अथॉरिटी कोट नहीं करें। जब भी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़े DOPT के साइट पे जाइए और वहाँ से जो सर्कुलर है, वहाँ से जो मेमोरेंडम है, वहाँ से जो ऑर्डर है उसके अनुसार अपना कार्य करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।